चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। And viewers, Republic has been getting you the voices of students from across the country who are demanding action, demanding justice rather, over alleged NEET irregularities. Note in the last hearing, the top court had even told the NTA to file a response in relation to the alleged irregularities, also asking whether the NEET exam can be reconducted, if at all. So yes, that's our primary focus, getting you the voices of those students who've been demanding action, who have been demanding answers from the NTA and the government as well. We'll just go across to Riyanka as well, but note that today is going to be another day when the students will be staging a protest, demanding action and seeking answers. Primary demand of these students being that the NEET exam must be reconducted. So yes, the top court is all set to hear 3 new petitions today in relation to the same case. The top court will hear 3 petitions pertaining to the scam. So while Republic has been vociferously getting you the voices of students and questioning the National Testing Agency, the top court in the last hearing had asked the NTA to file a response by 18th of July over the alleged irregularities and had even sought a response on whether the exam can be reconducted, if at all. Let's go across to Riyanka, who's joining us with the latest on that. Riyanka, the students, hundreds and thousands of bin, as a matter of fact, have been left in a lurch. They are demanding answers. The primary demand of these students, as we understand, is that there should be a re-examination that should take place. Is there any scope that the exam could re-happen, if at all? See, the students are already pressing for the re-examinations as they were raising slogans of #ReNEET when they protested yesterday. On the other hand, we are going to see the protest to resume once again here at Jantar Mantar. The students are set to come in at this site from around 10:30 a.m. The protest will gain momentum somewhere in an hour from now. But when we talk about if at all there will be re-examination, remember the Supreme Court has refused to put a stay on the counselling. The process is continuing. It depends on the hearing that takes place once again on the 8th of July on these terms. Till then, the Supreme Court has directed the NT and the centre to issue response, because the court goes ahead and says that the sanctity of the particular NEET examination has been affected and the lives and the future of students are also at stake at this point in time. Today, there will be hearing on 3 PILs that have been filed in the Supreme Court regarding the similar allegations of A, paper leak, B, grace marks being allotted to students. Nearly 1,500 students have been allotted grace marks. These are the allegations by the protesting students as well. On the other hand, if we see, around 67 students have scored full marks in the NEET examinations, which is an unlikely situation altogether, which is why several questions are being raised on the conduct of the examination and the declaration of results. Remember, the results have been declared 10 days in advance. It was supposed to be declared on 14th of June, but they were already declared on 4th of June, which is why several questions are being raised. And today we'll have to wait and watch how the hearing goes on in terms of the PILs that have been filed by the Chief Executive of Physics Wala, Mr. Alak Pandey, and other students as well. On the other hand, the students will start coming in at this particular location to resume their protest, and the due course of the day will get you all the dramatic developments that take place here. All right, Riyanka, stay with us. We also spoke to several students in Bihar who've been voicing the same concerns when it comes to that NEET exam. Listen into the voices of the students. हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। ये बताइए कि आपकी क्या मांग है?
सबसे पहले तो एक हमारा इवोल्यूशन करवाया जाए, उसके बाद या तो फिर रीनीट करवाया जाए, क्योंकि इस बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है। तो सिर्फ ये ग्रेस मार्किंग में जो 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, इससे इतना बड़ा चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे मार्क्स जो हैं 639, इस पे पिछली बार 10,000 रैंक थी और इस बार 40,000 रैंक के आसपास चली गई है। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आता किसी भी एक साल में। तो इसीलिए सबसे पहले एक जांच होनी चाहिए अच्छी तरीके से। हाँ, हमारी भी यही मांग है कि या तो आप रीवैल्यूएट करिए, क्योंकि एक साल में इतना बड़ा गैप कभी नहीं हो सकता है, और नहीं तो हम सारे बच्चे रीनीट देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ सर, हम लोग 2-3 बार दे चुके हैं। जी हाँ सर, ये फोर्थ मार्क्स आया 647। 647। यस सर। आपको क्या उम्मीद थी 647 में? 647 में सर बिहार पटना का अच्छा कॉलेज हो जाता मेरा, और जितना रैंक आ रहा है इस बार उससे तो लग रहा है कि जनरल कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा भी नहीं। तो आप इतने दिनों से कोचिंग करा रहे हैं, आपको क्या लगता है, प्राइमा फसाई क्या लग रहा है इसमें? सबसे बड़ी चीज़ है कि एनटीए का गठन और नीट का एग्ज़ाम जो लगातार कुछ वर्षों से लिया जा रहा था, तो हमेशा कहा जाता है कि नीट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम, लेकिन ये भी माना जाता था कि जिस तरह से बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहे थे, इस बार वो संख्या लगभग 25 लाख बच्चों की थी, और 25 लाख बच्चों ने जब एग्ज़ाम दिया तो जितनी मेहनत के साथ जिस तरह का मार्क्स उन्होंने गेन किया था, तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा मार्क्स मिला और बहुत अच्छे कॉलेज में वो जाने वाले हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के दिन ही पेपर लीक आउट का मैटर आता है, और पेपर लीक आउट होने के बाद भी एनटीए उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि पेपर लीक आउट हुआ है। लेकिन लीक आउट होने के पूरे साक्ष्य और पूरे गवाह बिहार में मौजूद हैं। वो सारे जिन बच्चों ने जिन्होंने भी ये किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने ऐसे ऐसे किया है, और उसके बाद भी एनटीए उसे एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है और इसे कहीं ना कहीं देखना है। आप बताइए सर। मेरा कहना यही है कि जिस तरह से रैंक इन्फ्लेट हुआ है, वो स्पष्ट दिखा रहा है कि इसमें सिर्फ ग्रेस मार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें पेपर लीक का प्रॉब्लम है। और पेपर लीक के थ्रू थोड़े स्टूडेंट नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इंटर करेंगे, तभी इतना ज़्यादा रैंक का वेरिएशन आ सकता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उसके विषय में तो एनटीए अभी तक चुप्पी साधी हुई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेपर लीक, और उसकी जांच होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि या कोई अच्छा एक्शन लिया जाए, रीनीट करवाया जाए या पेपर इवैल्यूएट करवाया जाए। सर, रिज़ल्ट को रीपब्लिश किया जाए या फिर रीनीट हुआ जाए, दोनों में से कोई एक। री-एग्जाम। यस सर। सर, मेरा कहना है कि जितना जल्दी हो सके इस पे मतलब जस्टिस हम लोग को मिलना चाहिए। All right, know that Republic teams have been on the ground. We've been reporting from that very epicenter of the NEET exam scam, which apparently happened. In an exclusive, we also spoke with the NEET topper Krish, who scored 720 out of 720 marks. Listen in to what he has to say. अभी 10 तरह के जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा है उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज हैं। आपकी क्या राय है इस पे? तो जितनी भी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो ऑफ कोर्स एनटीए डिनाई नहीं कर सकता, उनकी तरफ से हुई हैं, बट जो हमारे सेंटर पे हुई थी उसके बाद जस्ट अगले ही दिन हमारे सेंटर के सामने फिर बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया था, और फिर बच्चों ने क्या कहते हैं एक लोकल यूनियन बना के उसके बाद हाई कोर्ट में गए थे, और उसके बाद हाई कोर्ट से ये आया था कि इनको जो इनका टाइम लॉस हुआ है और जो पेपर इनको दूसरा डमी पेपर दिया गया उसके हिसाब से इनको नॉर्मलाइजेशन देनी चाहिए। आपके सेंटर पे एग्जामिनेशन कितने बजे स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट तो सही टाइम पे हुआ था, बट जो हमें पेपर मिलने चाहिए थे वो हमें दोनों पेपर दे दिए। 2 पेपर्स आते हैं हर एक सेंटर पे, एक जो नॉर्मल पेपर जो होना चाहिए और एक डमी पेपर, तो हमें दोनों पेपर दे दिए स्टार्टिंग में, और बोल भी यही दिया कि दोनों करने हैं। तो हमने दोनों की OMR, और ये सब कुछ 2 बजे के बाद हो रहा है, तो हमने दोनों की OMR भरी, दोनों OMR भरने में टाइम गया। OMR शीट भरने के लिए क्या एक्स्ट्रा वक्त मिलते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, जो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम होता है उसी में भरनी होती है। जैसे क्या होता है, जैसे पिछली बार जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उसमें उन्होंने पहले ही दे दिया था पेपर 2 बजे से पहले, और OMR भरने का टाइम उन्होंने दे दिया था। तो उसमें जो पूरा 3 घंटे 20 मिनट था उसमें उन्होंने बीच में कोई भी ऐसे नहीं हुआ कि बार बार में वो आ रहे चेंज करवा रहे कि ये पेपर नहीं देना वो पेपर देना है, और फिर ऐसे बार बार में आके चेंज करवा रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाई है, क्या राय आपकी इसमें? तो वो उनका यूँ है कि अगर जैसे जो केसेस चल रहे हैं अगर वो बाद में प्रूव नहीं कर पाते कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो जो इतना ज़्यादा टाइम लगता है किसी उस चीज़ को टाइम तो लगेगा ही उसको प्रूव करने में, तो जो वो टाइम है वो बच्चों का लॉस हो जाएगा।
तो अगर वो बाद में प्रूव नहीं कर पाते हैं तो बच्चों का वो टाइम लॉस ना हो, इसीलिए काउंसलिंग को कंटिन्यू रखा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे जो जगहों पे ये चीज़ बताई जा रही है कि पेपर लीक्स हुआ, ठीक है। आपके 10th के अंदर कितने मार्क्स थे? 10th में जैसे हमारे कोविड का टाइम था तो टेस्ट तो हुआ नहीं था बोर्ड का, तो बट वैसे जो स्कूल की तरफ से आया था उसमें 92% थे। 12th में कितने मार्क्स थे आपके? 12th में 94.4। तो ये जो पेपर लीक्स की डिस्क्रिपेंसी है इसके अंदर बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे जो कि क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, टॉप नहीं कर सकते थे, वो भी टॉप कर गए। क्या आपके सेंटर पे आपने कभी इस तरह का वहाँ पर महसूस किया कि कोई जो विजिलेंस की टीम है, जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो गलत हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट आया है वहाँ पे, इस तरह का कुछ था वहाँ पे? इन्विजिलेटर्स कोई अलग से बाहर से आया, किसी की मार्कशीट चेंज हुई, क्या आपने ऑब्जर्व किया इस तरह कुछ? मैं तो जैसे मेरा सेकंड अटैम्प्ट था तो ऑफ कोर्स मैं तो पेपर में इतना ज़्यादा थे, मैं तो इधर उधर देख नहीं रहा था, बट ऑफ कोर्स ऐसा होता है तो बाकी बच्चे भी कंप्लेन करते, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। मेन तो हमारे सेंटर पे वही था कि उन्होंने पेपर अलग अलग ऐसे गड़बड़ कर दी थी पेपर।